Hello students, welcome to my YouTube channel. And as in our last lecture we were discussed about the magnetic effects of current, and we discussed up to the magnetic field due to a straight current carrying conductor. And in that topic we consider a conductor, straight conductor, and the current is passing through the conductor. And we know the direction of the magnetic field by using the right hand thumb rule. In that case, suppose this is a conductor and the current is going from bottom to upward, and we hold this conductor in our right hand in such a way that our thumb directs the direction of the current and the curvature of finger shows the direction of the magnetic field. So students, in such a way we find the direction of magnetic field, that if the current is going from bottom to upward, then the thumb directs the direction of the current and our curvature of fingers will show the magnetic field. So in this way magnetic field is inward, clear? But if we reverse the direction of the current, that the current is going from now up to down, then our thumb directs downward and the curvature of fingers is outward. So that means the current magnetic field is outward. Okay, and today we will discuss our next topic, magnetic field due to a current carrying wire. Okay, magnetic field due to a straight current carrying due to a circular, not straight, circular current carrying वायर, जिसको हम लूप भी बोल सकते हैं. ठीक है, करंट कैरिंग वायर कैसे? अब देखो, सर्कुलर वायर बोला गया है, यहाँ पर आप इसको लूप भी बोल सकते हो. हमने क्या किया, एक वायर ली, जैसे ये वायर है मेरे पास और मैंने इसको ट्विस्ट कर लिया, इसको ऐसे मोड़ लिया. ठीक है, तो वो किसकी शेप ले लेगी? एक सर्कल की शेप ले लेगी. हमारे पास एक वायर है, हमने वायर को क्या किया, ऐसे करके ट्विस्ट कर लिया. ये वायर का वन एंड है, वायर का सेकेंड एंड है, एक सर्कुलर लूप में आ गई. और हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से अटैच कर दिया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल. क्लियर? एंड देन we will attach it with a rheostat here. Rheostat is the device which is used to change the potential. Okay, if the value of the rheostat increases, that means if the resistance is increases, then current will decrease, and if the resistance decreases, then current will increase. So we can change the value of resistance here, and so that the current's value changed with respect to this resistance. Okay, and now we combine it with the key. Here is a key, we off firstly the key. Okay, and then furtherly it will attach with this. Okay, second end of the wire. Clear? And as we know, direction of current is always from positive to negative terminal of the battery. So the current is going inside of the coil in such a way, here key is on, तभी करंट जा पाएगा ना. अगर हम की को ऑफ कर देंगे तो करंट नहीं जा सकता है. ठीक है, तो की को ऑन किया, बैटरी ने करंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया और करंट ने अपनी डायरेक्शन ली, एंड देन इट अगेन एंटर्स टू द नेगेटिव टर्मिनल. ओके, so now we find the direction of the magnetic field due to this current carrying circular coil. Listen, as we know magnetic field is represented by symbol B. magnetic field को हम कैसे represent करते हैं? by symbol B. yes, तो हम कर रहे थे कि magnetic field को हम represent करते हैं with symbol B. okay, so हमारे पास जो B है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, हमने चेक करना है कि मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और जो उसकी डायरेक्शन है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. तो पहले हम चेक करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन
कि जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। देखिए फर्स्ट वन इज जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करेगा ऑन द करंट। अब यहाँ से आपने क्या किया, करंट की अमाउंट को बढ़ा दिया। अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आ रहा था सर्किट में, करंट के कारण। अगर करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करने वाली है, इंक्रीज करने वाली है। सो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स इफ I इंक्रीजेस, अगर I की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी क्या करनी है, इंक्रीज कर जानी है। ठीक है। सेकेंड फैक्टर हमारे पास क्या है, ये आपको क्लियर हो गया कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो हमारे पास सेकेंड फैक्टर है दैट इज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। नाउ व्हाट इज N हियर, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स of the coil, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अब यहाँ पर जो है सिंगल टर्न दी गई है, अगर हम टर्निंग बढ़ा देंगे, वायर हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे इसमें हमने टर्निंग बढ़ा दी, इसको हमने ऐसे ले लिया, ठीक है, तो जितनी टर्न्स बढ़ेंगी, ठीक है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में जितनी बढ़ती जाएंगी उतना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। थर्ड थिंग क्या है कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। नाउ व्हाट इज R? R इज द रेडियस ऑफ द कॉइल। R क्या है, रेडियस ऑफ द कॉइल है। हमारे पास ये कॉइल है, ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। अब सेंटर से लेकर जो रेडियस है कॉइल का वो हमने सपोज कर लिया कितना है, R है। अब देखो अगर R की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, इंक्रीज कैसे कर रही है, देखिए सपोज कीजिए कि इसका हमने रेडियस बढ़ा दिया, कॉइल हमने कुछ ऐसी ले ली, ठीक है। अब करंट तो सेम ही जाना है, बट जो उसमें R की वैल्यू है अब वो क्या कर गई है, वो इंक्रीज कर गई है। ये जस्ट आपके समझने के लिए है। R की वैल्यू क्या कर गई, इंक्रीज, R1 इज ग्रेटर देन R। अगर R की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जितना हम सेंटर के क्लोज जाते रहेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जितना हम सेंटर से, कॉइल के सेंटर से दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। तो R1 पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी एज कंपेरिजन टू दिस पॉइंट। ओके, सो इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, ठीक है। उसके बाद अब इन तीनों फैक्टर्स को हम कंबाइन कर देंगे। तो इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाता है वो देखिए। इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं। मैं यहाँ से ये इरेज कर रही हूँ टॉपिक। यस, इन तीनों फैक्टर्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ठीक है, इन तीनों पॉइंट से हमें क्या मिला कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है किसके, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NI अपॉन R, NI अपॉन R। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो डिपेंड कर गया किन किन फैक्टर्स पर, ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, ऑन द करंट एंड एज वेल एज ऑन द रेडियस। नाउ we discuss the direction of magnetic field. Next is direction of magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है, सॉरी वो मैंने डायग्राम इरेज कर दी, वो चाहिए थी हमें, वेट आई विल मेक अगेन। दिस डिस्टेंस इज R। आपकी भी रिवैल्यूएशन हो जाएगी इससे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, रियोस्टेट, here is the key which is on and this is the direction of the current. Okay,
Yes. Now see, we find the direction of the magnetic field. Direction of the magnetic field find out करने के लिए हम सेम कौन सा रूल यूज करेंगे? क्लॉक रूल. Which rule? क्लॉक रूल. क्लॉक रूल हमने किया था, आपको याद होगा. क्लॉक रूल क्या था? देखिए ध्यान से. क्लॉक रूल है कि अगर करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. देखिए अगर करंट जा रहा है क्लॉकवाइज तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास कर्वेचर ऑफ फिंगर्स है, राइट हैंड थंब रूल में क्या था, देखिए जो हमारे पास कर्वेचर ऑफ फिंगर्स है, यहाँ पर उल्टा होगा, वहां पर कर्वेचर ऑफ फिंगर्स क्या बता रही थी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बट यहाँ पर जो हमारे कर्वेचर ऑफ फिंगर्स है वो क्या बताएंगी? डायरेक्शन ऑफ करंट. और थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. उल्टा हो गया यहाँ पर, ठीक है. तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारा थंब बताएगा और करंट की डायरेक्शन में कौन जाएंगी? फिंगर्स. तो फिंगर्स को हम क्या करेंगे? ऐसे करके रोटेट करेंगे. देखो ये क्लॉकवाइज है, फिंगर्स हमारी ऐसे कर लूंगी, ठीक है. तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जाएगा? इनवर्ड. तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड है. मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? इनवर्ड, ठीक है. अब अगर हम इसी डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज कर दें, कैसे बोल रहे हैं? देखिए अगर हम डायरेक्शन को क्या कर दें? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. हमने यूज क्या करना है? वही राइट हैंड यूज करना है. तो हम अब क्या करेंगे? कर्वेचर ऑफ फिंगर्स को हम ऐसे करेंगे, ऐसे. ये कर्वेचर ऑफ फिंगर है ना, देखो कर्वेचर ऑफ फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, ठीक है. तो हमारा जो थंब है वो बाहर की तरफ है. दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकंड केस में क्या है? आउटवर्ड है. तो ऐसे हमें मैग्नेटिक फील्ड की जो है डायरेक्शन पता लग जानी है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है या फिर इनवर्ड होगा, ठीक है. तो राइट हैंड थंब रूल से. बट यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वही सेम कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे, कौन बताएगा? कर्वेचर ऑफ फिंगर्स. एंड थंब क्या बताएगा यहाँ पर? डायरेक्शन ऑफ करंट. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक छोटा सा टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल. एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड. सो आपने इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.